आइए देशवासियों, चलते हैं भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने। अनुमति जिस तरह से मिल गया, उच्चतम न्यायालय ने जो है रथ यात्रा की अनुमति दे दिया है। वहीं पर सदियों पुराना परंपरा श्री भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति उच्चतम न्यायालय द्वारा समय पर सुनवाई के समय यह दे दिया गया। और देश के हिंदुओं का सनातन धर्म का सबसे जो है परंपरा, कलाकृति, सांस्कृतिक मंदिर का जिस तरह से देखा जा सकता है, भगवान श्री जगन्नाथ बाबा रथ यात्रा की जो है शुभारंभ जो है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने दिया है, या लहर पूरे भारत में देखी गई। देश के हिंदुओं का सर्वोच्च महत्व तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी धाम है, और जगन्नाथपुरी की धाम परंपरा को सदियों पुराना चला आ रहा या सांस्कृतिक रूपरेखा जीवित रखना न्यायालय के फैसले दिया गया है। अनुमति मिलते ही देश में खुशियों की उत्सव और लहर की एक अलग अनोखा अंदाज दिखाई दिया। बाबा जगन्नाथपुरी से दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु, आम व्यक्ति, साधु सन्यासियों का संकल्प होता है कि जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना है। इसके लिए साधु सन्यासी कई कई महीनों पहले से तैयारियां चालू कर देते हैं। आगे की रिपोर्टिंग देखिए। Myself Vaishnav Puri from Puri Jagannath, Languli Mat, Sri Panchdasanam Juna Akhada. Very unfortunately, I am speaking today that my heart is very sad about hearing the blind Supreme Court's decision that car festival will be detained within the law, not beyond law. Law means logically accepted witness. In Puri Jagannath Grand Road, there is zero corona. Anyone has not infected yet corona in Puri Grand Road, Puri Jagannath. So that I am challenging to the Supreme Court, why Supreme Court is not exercising his power to stop cow killing in India. Why Supreme Court is not exercising his power to stop liquor ban in India? Why Supreme Court is not thinking seriously about the welfare of the country? And this is the Puri Jagannath's culture, the heritage and the culture wearing himself, that you can see that Ujjain Mahakal, one saint was come by foot. From 45 days long journey, he arrived here at Puri Jagannath. Still now today the burning example of devotees are coming by foot, so that you cannot stop Supreme Court of India. You have to review, you have to modification, but you have to provide us justice. We have given you the chair for justice. If you will be not wear the capacity to deliver the justice, then you have no moral right to stay there. You have to just leave the chair. And as per my beliefs, and we are thinking, our faith is beyond the science. When the science defeated, the spiritualism started. So that this is the power of Jagannath. Puri Jagannath is safe, Odisha is safe almost. Only 12 deaths happened due to corona, so that this is not a major effect on Odisha. So that on the name of corona, you cannot stop car festival. And the powerful servitors of Jagannath, they are believing and their faith on Jagannath Ji as the judge of the Supreme Court, the supreme of the Supreme Court. So that our judge is Jagannath, not Supreme Court judge. So that I am challenging and I am awakening to all of the servitors. You have to unite it and you have to show your power and your love to Jagannath Ji. That's all. Om Namo Narayan. Jai Jagannath. आओ चले आओ भक्तों, भगवान श्री जगन्नाथ बाबा धाम की यात्रा करने, रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सभी लोग भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज जो है उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ धाम, आप जान सकते हैं, रथ यात्रा हर वर्ष की भांति दिखाई देती है, और लोग जो है इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से मेहमान हमारे वहाँ शामिल होते हैं, और बड़े धूमधाम के साथ रथ यात्रा जो है निकाली जाती है। या सदियों पुराना हमारा सांस्कृतिक रूप और रंग जिस तरह से दिखाई देती है, यह सबसे बड़ा अनोखा जो है रथ यात्रा होती है, और भगवान श्री जगन्नाथ बाबा इसमें सवार होते हैं। आप भी शामिल होइए इस रथ यात्रा में और दर्शन कीजिए
भगवान जगन्नाथ पुरी बाबा धाम का। रथ यात्रा की अनुमति मिलते ही सभी लोग, आम व्यक्ति से अपील है कि आप सभी लोग रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग से विनती है कि आप भीड़-भाड़ वाले जगह पर ज़्यादा न रुकें और अपने सावधानी स्वास्थ्य के लिए, परिवार, देश की रक्षा के लिए आप हमेशा अपने मुंह में मास्क लगाकर चलें और सैनिटाइज आप अपने बैग में रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। देश के भक्तों से अपील है कि शासन प्रशासन पुलिस की मदद सहयोग ज़रूर करें और ज़रूर सहयोग उनसे लें। यही अपील है और लगातार आपसे आगे की रिपोर्टिंग देखिए राजेश गुप्ता जी, कानपुर से। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। सब लोगों को 23 जून 2020 जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं। राजेश गुप्ता, एसीसी स्टाफ चीफ, वेस्ट यूपी, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी आज जो है इनका मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में, और वो आप आज अपने सारे परिवार के साथ जो है मौसी के घर निकल रहे हैं। आप सब लोग जो है उनसे आशीर्वाद मांगिए कि जो हमारा कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है देश में, वो उनकी यात्रा के समय बिल्कुल भाग जाए, उनके रथ से निकलते ही वो बिल्कुल अदृश्य हो जाए और हम लोगों को ना दिखाई दे। इस देश से जो है सब लोग समृद्धशाली, सुखी और स्वस्थ बने। जैसा कि आपको पता है कि जब भगवान का जब रथ का प्रोग्राम होता है तो बसंत पंचमी के दिन इनकी जो रथ की जो नीम की लकड़ी है उसका चुनाव होता है, और उस चुनाव होने के बाद में उस लकड़ी के द्वारा जो रथ बनता है वो अक्षय तृतीया के दिन रथ की शुरुआत पूजा पाठ से होती है, क्योंकि उस अक्षय तृतीया से कोई भी किया हुआ काम का क्षय नहीं होता है, अच्छा रहता है। इसलिए उस रथ का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब वो जो रथ निकलता है उसमें सबसे पहले जो है भगवान के बड़े भाई बलराम जी, उनका रथ निकलता है। उसके बीच में नेक्स्ट रथ जो होता है बहन सुभद्रा का होता है, और जो थर्ड लास्ट वाला रथ होता है वो भगवान श्री कृष्ण का, जिनको हम लोग जगन्नाथ जी के नाम से कहते हैं, उनका रथ होता है। तो आज जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए देश के काफी भागों से लोग जो है वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। उसके लिए हम सब लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि घर बैठकर जगन्नाथ जी से यही विनती करें, प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद या उनके रथ की जो रस्सी है वो हम अपने मन में मनाकर यहीं से खींचे। तो अगर सारे लोग मन में रस्सी बना के उनके रथ को खींचेंगे तो वास्तव में वो रथ जो है उनके मौसी के घर जो जाता है वहां पहुंच जाएगा, और वो आराम से वहां पर बैठकर हमारे देशवासियों को आशीर्वाद देंगे कि इस कोविड-19 में हमारे देश में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि हमारे देश में लोग कहें कि इस महामारी के कारण हम लोग जो है बहुत ही बेरोजगार हो गए, हम लोगों का जो है कारोबार कम हो गया, या हम लोग जो है अस्वस्थ हो गए। जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, जगन्नाथ जी के कृपा से इस देशवासियों को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस जगन्नाथ यात्रा को घर में बैठकर आप मनन कीजिए और मान के चलिए कि हम उनकी यात्रा में उनकी रस्सी लेके खींच रहे हैं, क्योंकि उसको रस्सी खींचने का बहुत बड़ा एक पुण्य मिलता है, एक मोक्ष मिलता है और एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस पुनीत कार्य में आप कहीं भी पीछे ना रहें। और 23 जून जो हमारा आषाढ़ की द्वितीया जो शुक्ल पक्ष की होती है उसी दिन ये जो है प्रोग्राम होता है। तो आइए हम लोग सुबह से नहा धोकर तैयार हो गए भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को घर में खींचने के लिए रस्सी सब लोग तैयार हो जाए परिवार के साथ, और घर बैठे इस यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि मन से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मन की स्पीड को आपको पता हो कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए मन में यह धारण करें कि हम जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं, और उनके रथ को खींच के अपने देश को इस कोविड-19 को हराने के लिए उनसे प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। ये हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना और विनती है कि आप सब लोग जगन्नाथ यात्रा के 23 जून 2020 के रथ यात्रा में घर में बैठकर इसको सफल मनाएं, इसको आशीर्वाद प्राप्त करें, और हमारा जो जगन्नाथ जी का
ध्वज है वो ऊपर उड़ता रहे, हमारे देश का तिरंगा झंडा ऊपर उड़ता रहे, हमारे मानवता का झंडा ऊंचा उड़ता रहे। यही भारतवर्ष की जो शांति प्रिय नीति है उसका झंडा ऊपर उड़ता रहे। यही आप सब लोगों से मेरी विनती और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।